ਟੋਲਰੈਂਸ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੋਲਰੈਂਸ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੋਲਰੈਂਟ ਹੋਣ 'ਚ ਔਰ ਝੇਲਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਝੇਲਣ ਨੂੰ ਹੀ ਟੋਲਰੈਂਟ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੋਲਰੈਂਸ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਔਰ ਹਰ ਪਲੱਸ ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਅਸੈਪਟਡ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਫੈਮਿਨਿਨ ਵਰਚੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਥੁੱਕ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਯੂਰਿਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਗਿਵ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਨੇਚਰ ਦਾ ਜੋ ਲਾਅ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜੋ ਲਾਅ ਹੈ, ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਨੇਚਰ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਲਿਵਿੰਗ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਲਵ, ਟੋਲਰੈਂਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਿਭਰ ਕੇ ਆਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਰੈਕਟਰ, ਸਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਟੈਂਪੋਰਲ ਐਸਪੈਕਟ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਮ ਕੋਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਾਗ ਸਲੋਂਦੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਜਗਾਇਆ, ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਕਦੀ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਦੂਸਰਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਟ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸਾਈਕੇ ਦੀ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ। ਰੰਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਧੀਆਂ, ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਸਯਾਦ, ਸੁਚਸੀਲ ਸੰਜਮ ਪੰਨੀ। ਸੁਚਸੀਲ ਸੰਜਮ, ਤਿੰਨ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਓਨੈਸਟੀ, ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਹਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਅਗਰ ਮੇਲ ਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਮਨ ਆਰ ਇਕੁਅਲੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ, ਦੇ ਆਰ ਇਕੁਅਲੀ ਔਨ ਦ ਰੋਂਗ ਟਰੈਕ। ਅਸੀਂ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਨਾਲ, ਔਨ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਟੇਕ ਆਰ ਓਨ ਡਿਸੀਜਨ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਨਾਲ। ਇਟ ਇਜ਼ ਓਕੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬੈਡ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਵੀਆ ਕਿਨੀ ਗੁਣੀ ਜੀ, ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖ ਸਿਗਾਰਿਆ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣੀ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਔਰ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਜ ਔਰ ਸੰਤੋਖ, ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਾਪ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਹਿਜ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ। ਸਹਿਜ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਦੇ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ। ਅਗਰ ਸਹਿਜ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੋਖ, ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸਿਗਾਰ ਬਣਾਵੋ। ਓਨੈਸਟੀ, ਸੰਤੋਖ, ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਦਇਆ ਔਰ ਧਰਮ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਦਇਆ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਵਰਿਤ ਨਿਵਰਿਤ ਹਾਠਾਂ ਦੋਏ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਫਿਰੇ ਰਹਿਵਾਰਿਆ, ਕਿ ਦੋ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੋ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਨਦੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਲਾਈਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡਲੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਟੋਟਲੀ ਅਸੀਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਊਟਵਰਡ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਚ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਓਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਤਨੇ ਸਾਡੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਛਲਕਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਈਵਨ ਇਨ ਬਿਊਟੀ ਪੈਜੈਂਟਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਵਰਲਡ, ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਬਿਊਟੀ ਪੈਜੈਂਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਸ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂ, ਦੇ ਸੇ ਬਿਊਟੀ ਇਜ਼ ਸਕਿਨ ਡੀਪ, कि वैल्यूज़ ऑन ब्यूटी आउटवर्ड नहीं है। तो गुरु साहब साढ़े सामने एक
ਕਲੀਅਰ ਫਲਸਫਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮਿਲੇ ਕਿ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਕੀ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਇਆ ਨੂੰ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਇਆ ਸੋਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਹਰ ਕੌਨਸੈਪਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਅਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਰਹੀਏ ਔਰ ਐਨਰਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਅੱਛੀ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਨਰਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਮ ਇਜ਼ ਕਾਮਨਾ। अगर डिज़ायर साड़ी लाइफ में नहीं है, डिज़ायर इज़ अ मोटिवेशन कि मैं कुछ करना है, मैं पढ़ना है, या मैं लैक्चर सुनन आना है, या मैं किसी प्रोफैशन में जाना है, यह सारा कामना का हिस्सा है। अगर ये ड्राइव नूं ही असीं कट देने अपनी लाइफ दे विच, तो फिर असीं गुरबानी नूं वे ऑफ लाइफ लिया ही नहीं सकते। वो तो जो फिर संन्यास मत पहले चल रहे सी सफिशेंट सी कि डिज़ायर नहीं है। सो कामना अपने आप में बुरी नहीं है, उन्होंने मैं कितनी एक्सट्रीम ते लैके जानी हाँ, वो डिसाइड करेगा कि वो नैगेटिव है या पॉजिटिव है। क्रोध, अगर मैं अपने गुस्से नूं राइट डायरैक्शन लैके जावांगी, राइट डायरैक्शन यूज़ करांगी, वो किसी वास्ते जस्टिस का काम करेगा, क्योंकि मैं किसी के हक वास्ते गल कर सकांगी। लोभ साड़ा सीमा दे विच होना चाहिए। लोभ अगेन इज़ अ ड्राइव। लोभ, ग्रीड और नीड विच फर्क है, लेकिन गुरु साहब ये नहीं कह रहे कि तुसी नीड तो अगे कुछ भी ना करो, करो लेकिन उन्होंने यूटिलाइज़ फिर इस बेच करो कि तुहाडी जिहड़ी नीड है या तुहाडी जिहड़ी इकोनॉमी है वो किसी दी पावर्टी का कारण ना बन जाए। गुरु साहब सानू ये क्लीयर कर रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह इज़ अटैचमेंट, और गुरु साहब ने सानू प्रेम करन वास्ते कहा, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो। पूरी ह्यूमैनिटी नू प्रेम, पूरे हर रिलेशनशिप नू, वैदर योर फ्रेंड सर्कल या कोई तुहाड़ा सर्वेंट है या हूसो एवर तुहाडे कॉन्टैक्ट जो आंदा है, यू शुड लव ऑल। लेकिन अटैचमेंट तुहाडे अंदर एक पोजेसिवनेस की फीलिंग लैके आएगा, और वो हमेशा ही हार्मफुल होएगा, बायस्ड होएगा, वो तुहानू भी तंग करेगा। और जिस चीज़ अगर तुहाडी अटैचमेंट है या किसी इंसान दे विच तुहाडी अटैचमेंट है, तुहाडे अंदर एक डिज़ायर ऐसी आ जाएगी कि मैं उन्होंने पोजैस करा, वो हमेशा एक नैगेटिव इंपैक्ट लैके आएगा। तो ये चीज़ों को अगर असी राइट डायरैक्शन, दैन ईगो, हौमे की गल असी कर रहे हैं, हंकार की गल कर रहे हैं, लेकिन हौमे अगर तुसी राइट वे यूज़ करो इन राइट क्वांटिटी, तो वो सैल्फ रिस्पैक्ट का काम तुहाडे वास्ते करेगी, क्योंकि सैल्फ रिस्पैक्ट नूं गुरु साहब ने नकारिया नहीं है। मॉडर्निटी और वैसटर्नाइजेशन की गल असी लोग कर रहे हैं। असी मॉडर्निटी नूं ड्रैसिस नाल भी जोड़िया, असी मॉडर्निटी नूं इंग्लिश लैंग्वेज नाल जोड़िया। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी ड्रैस, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी लैंग्वेज, एंड आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीथिंग। लेकिन मॉडर्निटी का तलक है, अगर असीं उहदी डेफिनेशन नूं देखिए तो मॉडर्निटी का तलक माइंड दे नाल है कि जो चेंजिज आ रहे हैं, टेक्निकल एडवांसमेंट, टेक्निकल चेंजिज, असीं कितनी जल्दी उन्हां दी साडी अडैप्टेबिलिटी है, असीं कितनी जल्दी नवीं चीज़ नूं सिख रहे हैं। दैन इट डिपेंड्स कि असीं उहनूं यूज़ किस तरह करके लिया रहे हैं। मॉडर्निटी और वैसटर्नाइजेशन देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंट। अगर असीं एम्पावरमेंट द कॉन्सैप्ट वैसटर्न कॉन्सैप्ट देखांगे तो दैट इज़ सैल्फ डिवेलपमेंट, जो सर ने गल की हुई है, परसनैलिटी डिवेलपमेंट, वो इंडिविजुअलिज्म है जिहदे विच असीं सिर्फ अपनी चॉइस, अपना थॉट, मेरा प्रोफैशन। अगर असीं सोशल नैटवर्किंग साइट्स नूं देखने आ, उहदे विच मोस्टली असीं अपनी गल ज़्यादा कर रहे हैं, इमीडिएट असीं अपना व्यू देना चाहते हैं हर चीज़ दे उत्ते। लेकिन ईस्टर्न कॉन्सैप्ट, वुमन और मैन, दे आर पार्ट ऑफ फैमिली, दे आर पार्ट ऑफ होल। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੁਡੇ ਵੀ ਹੈਵ ਦਿਸ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਲਿਵ ਸੈਪਰੇਟਲੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਆਈ ਵੋਂਟ ਮੈਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਯੂ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਯੂ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਕੰਪਲੀਟ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ डिप्रैशन है, सुसाइडल टेंडेंसीज है, एंड लोनलीनेस है। तुसी अगर थोड़ा टाइम भी फेसबुक के उत्ते रेगुलर गल करो एंड फॉर 2 डेज़ तुहानू ना मिले गल करन नूं,
तो यू विल हैव डिप्रैशन और ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜੇਗਾ ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇजेस ਹਨ, ਯੂ ਆਰ ਐਡਿਕਟਿਡ ਟੂ ਦ ਮੈਸੇजेस। ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਸੇजेस ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਸੇजेस ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਪਲਾਈ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, तो सानू पता चलेगा कि साड़ी जी पर्सनैलिटी हो किस तरह की डिवेलप हो रही है कंप्लीट। बिकॉज वैन वी से कि एजुकेशन इज़ दी ओवरऑल डिवेलपमेंट, जिहदे सोशल मैंटल फिजिकल मॉरल इमोशनल स्पिरिचुअल सब कुछ आ रहा है। अगर असी इन्ने डिवेलप्ड हाँ फिर असी किसी दे नाल क्यों नहीं चल पा रहे, चाहे वो मैन वुमन रिलेशनशिप है, चाहे फैमिली है, चाहे एल्डर्स और नवी जनरेशन है, असी क्यों नहीं चल पा रहे। साड़ी एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, साड़ी अंडरस्टैंडिंग इच प्रॉब्लम है, या साड़ी एडजस्टमेंट मैल एडजस्टमेंट जो असी कह रहे हैं वो क्यों आ रही है। सो वी डोंट हैव टू करैक्ट द अदर परसन, असी अपने आप को एक बार करैक्ट करके, और वो विचार की गल जिस तरह की है वो विचार तो ही चलेगा। जिस टाइम असी कह रहे हैं कि सिख धर्म गृहस्थ प्रधान आ, गुरु साहब ने साढ़े सामने रखा पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राहो। असी इनू कहते हैं कि औरत तो बिना जी गृहस्थी नहीं है, और असी ये जी खुश हाँ, लेकिन गुरु साहब ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वह रोल दिता है कि हर रिलेशनशिप तुहाडे परिवार दे विच है या समाज दे विच है, एक औरत एक ब्रिज की तरह है कि वो 2 रिलेशनशिप्स नू जोड़ेगी। लेकिन अमूमन असी देखने हैं कि औरत एक बैरीयर की तरह बन चुकी है कि 2 रिलेशनशिप्स दे विच प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। वो इस कॉन्सैप्ट नू असी लोगों ने पहले समझना, जब तक रिफ्लैक्शन नहीं है साढ़े अंदर, पंक्तियां कोट करन नाल कुछ भी नहीं होएगा। अगर असी उन्होंने मीनिंग नू कि गुरु साहब सानू इहदे पिछे की समझाण दी, क्योंकि सर हमेशा कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड बिहाइंड द लाइन्स। तो बिहाइंड द लाइन्स दे विच सानू समझना पेगा कि रिलेशनशिप निभाण दी और रिलेशनशिप्स नू कायम रखण दा रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत नू इस करके दी, क्योंकि औरत दे अंदर गुरु साहब ने वो कैपेसिटी देखी है, परमात्मा ने वो अंदर वो क्वालिटीज़ पाइया ने। इस तरह ही औरत नू एक माँ का दर्जा नहीं देता। जदों असी हुण गृहस्थ नू देखिए, जदों असी डिवोर्स केसिस देखने या साढ़े आस पास से असी गृहस्थ देखने, तो रिलेशनशिप्स नू असी यूज़ कर रहे हैं, दे आर नीड बेस्ड। मैनू जिस रिश्ते की ज़रूरत है मैं वो कॉन्टैक्ट रेगूलर रहांगी, फ़ोन भी होएगा, मिलांगी, मेल्स भी, वो दिवाली होली मेरा न्यू ईयर सब कुछ होएगा उन्होंने नाल। मेरा कंफर्ट अगर उन्होंने बेस्ड है सर्टनली मैं उन्होंने नाल कॉन्टैक्ट रहांगी। लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कभी ऑब्जेक्ट्स नू असी कंफर्ट वास्ते लाते सा कि मैनू इस चीज़ की ज़रूरत है या मैनू फ्रिज टीवी की ज़रूरत है, मैनू आराम देगा। असी ऑब्जेक्ट्स नू ते चैरिश कर रहे हैं, उन्होंने पाल रहे हैं, संभाल रहे हैं, लेकिन रिश्तियां नू असी बिल्कुल कंफर्ट कंडैम करके एक साइड के उत्ते असी सुट दिता है। एक हसबैंड वाइफ, एक मैरिज का रिलेशनशिप जो कभी 2 फैमिलीज़ के कल्चर के उत्ते, 2 फैमिलीज़ के वैल्यू सिस्टम के उत्ते चलता सी कि उन्होंने सोच कैसी या वे ऑफ लाइफ कैसा है, अज वो फाउंडेशन पैसा है। ਤੁਹਾਡੀ फाइनैंशियल कंपैटिबिलिटी डिसाइड करेगी कि तुसी 2 फैमिलीज़ चल सकोगे या नहीं चल सकोगे। फाइनेंस इक्वल होने तो बाद भी मैं फैमिलीज़ नू टुटते हुए देखा है। 10 साल 15 साल की मैरिजिस तो बाद भी मैं दोनों हस्बैंड वाइफ नू अलग होंदे हुए देखा। और गुरु साहब ने 550 साल पहले सानू दस्या, सोयना रूपा रंगला मोती ते माणक जियो, जो वस्तन तैन दित्तियां मैं तिस्यो लागा चित जियो, मंदर मिटड़ी संदड़े पत्थर की ने रास जियो, होइनी टोली पुलियस तिस कंत न बैठी पास जियो। असी अपनी जो साड़ी कन्वरसेशन है वो इतनी नैगेटिव है। 2 चीज़ां, पहली गल तो असी किट्टीज़ बहुत बिजी हाँ। अगेन आई एम नॉट कंडेमिंग जिन्होंने शौक है, क्योंकि कुछ लोगों ने बड़ी सेंसिबल किटीज़ भी रखी हुई ने। दैन सैकेंडली असी लोग सीरीयल्स चन्ने इनवॉल्व हाँ कि एक रियल लाइफ होंदी है REAL और एक रील लाइफ होंदी है REEL। लेकिन साढ़े वास्ते जो एक रील लाइफ है वो ज़्यादा रियल है। असी उसी तरह रिएक्ट कर रहे हैं, उसी तरह जी रहे हैं। एक सीरीयल कि डेथ हो गई, किस नू घरों कटता वो सानू पता होएगा, लेकिन साढ़े घर दे विच ही साड़ा कोई मैंबर डिप्रैशन का पेशेंट है, साड़ा कोई मैंबर सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। वी आर अनअवेयर। सोशल कनैक्टिविटी, सोशल नैटवर्किंग साइट्स, जिन्नी असी कनैक्टिविटी वर्ल्ड दे नाल बना ली, उन्नी कनैक्टिविटी साड़ी खुद नाल और उन्नी कनैक्टिविटी साड़ी अपने माँ बाप दे नाल, साढ़े बच्चों दे नाल, साढ़े एल्डर्स दे नाल टुट गई। अज गृहस्थ है मी एंड माई हसबैंड, यह साड़ा गृहस्थ की परिभाषा है, जिदे विच साढ़े एल्डर्स
whatever reasons, ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ I've seen ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਈਗੋ ਕਲੈਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਥਾਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ me and my husband ਦਾ concept nuclear families ਦਾ concept develop ਹੋ ਗਿਆ। ਇसी ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ restlessness ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਮੈਰਿਜ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਫਰੀडम। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚਲੋ ਯੂ ਆਰ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਫॉर ਦੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਯੂ ਆਰ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਫॉर ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਫ ਯੂਰ ਚਿਲਡਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰਫ ਰਵੱਈਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਰਫ ਰਵੱਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਡਿਵੋਰਸ, ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਰਿਟਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਇਹ ਗ੍ਰਸਤ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਭ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਵ ਐਂਡ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਨੈਸ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਢੂੰਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਸਰਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਟੂਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਣਾ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੇਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਰਡਰਸ। ਆਈ ਐਮ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਅੱਛੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰੈਬਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ 13 ਸਾਲ 14 ਸਾਲ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਰੇਪਿਸਟ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨ ਯੂ ਟਾਕ ਟੂ ਦੈਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮਦਰ ਨਾਲ ਐਸਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਝਗੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਤਾਂ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਉਹ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਾਦਰ ਔਰ ਮਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਨ ਜਨਨੀ ਜੰਜਾਇਆ, ਤਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਰਾਬਰ। ਲੇਕਿਨ ਰੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮਤ ਮਾਤਾ ਸੰਤੋਖ ਪਿਤਾ। ਮਦਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਇੰਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਲਸਫਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਕੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਫਲਸਫਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਔਰ ਟੈਂਪੋਰਲ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਦੋਨੋਂ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਮਤ ਮਾਤਾ ਸੰਤੋਖ ਪਿਤਾ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਕਲਮੀਨੇਟ ਹੋਏਗੀ ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਲੋਕ ਅਗਰ ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੇਮ ਹੋਗਾ। दो इंडिविजुअल्स दे कैन नेवर बी सेम, दे कैन नेवर थिंक लाइक, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड, कल्चर, वैल्यू सिस्टम, अपब्रिंगिंग, हर चीज़ थोड़ी पर्सनैलिटी नूं बनाएगी। लेकिन एक कपल का अपने बच्चे की तरफ, परिवार की तरफ उन्होंने डेस्टिनेशन सेम होएगा। इस करके गुरु साहब एक डेवलपमेंट दस रहे हैं, एक एवोल्यूशन साढ़े सामने रख रहे हैं कि द वे यू बिगिन एज स्ट्रेंजर्स, लेकिन किस तरह नाल चलते हुए हाउ यू इवॉल्व इमोशनली, सोशली, तुसी दो बंदे किस तरह डेवलप कर दो। तद ही गुरु साहब ने सानू कहा कि एक का सिख दो साथ संग। संगत कॉन्सैप्ट गुरु साहब ने इत्थे दिता है कि दो लोगों की जिहड़ी कम्यूनीकेशन है या कलैक्टिव डेवलपमेंट है उस संगत वर्गी। तो एक कपल या एक परिवार जिहड़ा है संगत की तरह, और संगत की होंदी है ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ देख रहे हैं कि संगत ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह, संगत ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਾਇਲੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਇਲੋਗ ਇਨ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ, ਇਨ ਦ ਰਾਈਟ ਫਾਰਮ। ਡਾਇਲੋਗ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਨਨ ਔਰ ਮੈਸਕੂਲਿਨ ਟ੍ਰੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੈਮਿਨਨ ਔਰ ਮੈਸਕੂਲਿਨ ਈਗੋਜ਼ ਹਨ, ਦੋ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਈਗੋਜ਼ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਨਫਲਿਕਟ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋ ਈਗੋਜ਼ ਹਨ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਡਿਜ਼ੋਲਵ, ਮੈਂ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ, ਰਾਦਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਔਰ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ,
जिस टाइम उस यूनीयन के उत्ते वो पहुँचते हैं तो फिर एक जो दो मूर्ति वाला कॉन्सैप्ट साढ़े सामने आता है। एक औरत ने ही अगर शादी वो कर दी है तो वो माँ बनेगी, और माँ की बहुत इंपॉर्टेंस साढ़े सब के जीवन दे विच है। असीं कितने भी बजुर्ग हो जाइए, असीं अपनी माँ नूं नहीं भुलते कि वो खाना किस तरह बनाती सी, या वो घर नूं किस तरह देखती सी, या वो कपड़ा किस तरह, हर चीज़ दे विच असीं अपनी माँ नूं ज़रूर याद करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब दे गुरु साहब ने माँ नूं बहुत इंपॉर्टेंस दी है कि जिन्हें वैल्यू सिस्टम बच्चे नूं देना है। जदों असीं गृहस्थ प्रधान कहने आ तो एक स्टेज ऐसी सी जदों औरत नूं गृहस्थी दे विच एक बंधन मन्निया जांदा सी, और मुक्ति सैल्वेशन दे विच उहनूं एक रुकावट मन्निया जांदा सी। तो काहे दुध विच कांजी पाई, जदों गुरु साहब दा सिद्ध गोश्त होया, गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज है, तो सिद्धा ने जब सिद्धा नूं पता लगा जोगियां नूं कि गुरु साहब गृहस्थी ने, तो उन्होंने कहा काहे दुध विच कांजी पाई, कि दुध तुसीं पिटा दिता, तुसीं गृहस्थी हो। लेकिन गुरु साहब ने उन्होंने गृहस्थ पूरा एक्सप्लेन किया कि जो गृहस्थ है वो इस चीज़ के उत्ते बेस्ड नहीं है कि औरत रुकावट है, रादर वो तुहाडी एक सहायक है, तुहाडे नाल तुसीं एक यूनीयन दे विच चलोगे तद तुसीं अल्टीमेट ऑब्जैक्ट की तरफ पहुँच पाओगे। माँ ने सानू गुरबाणी नाल भी जोड़ना है, और माँ ने सानू साड़ी भाषा नाल भी जोड़ना है, गुरमुखी नाल भी जोड़ना है। तो दोनों जिम्मेदारियां साड़ी माँ दियां, क्योंकि साड़ी पहली गुरु है। असी जो भी चीज़ सीखते हाँ, गुरबाणी दे विच पंक्ति आंदी है, पहला प्यार लगा थन दुध, दूजा माई बाप की सुध। असी कहने कि पहली अटैचमेंट बच्चे की उहदी फीड दे नाल है, मदर दे नाल है, लेकिन पहली समाज दे नाल जो उहदी गलबात होएगी, फैमिली दे नाल जो पहली इंट्रोडक्शन है दादा दादी नाल, चाचा चाची नाल, फादर नाल, वो मदर दी तरफ, मदर दे राही होएगी। लेकिन अगर मदर दी अप्रोच ही बायस्ड है, या उहदा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है अपनी फैमिली दे नाल, चाहे पेरेंट्स की फैमिली है, चाहे इन लॉज की फैमिली है, तो वो इंटरैक्शन बच्चे की बायस रखेगी। और अज असी लोग देखते भी हाँ कि फैमिलीज़ दे विच एक कॉन्सैप्ट है जिहदे ग्रैंड पेरेंट्स नूं असी बच्चों नूं नहीं आन देंदे नज़दीक। असी उन्हें कहने पढ़ रहे ने, ए बिगाड़ देंगे, ए इन्हां नूं मैनर्स नहीं सिखा रहे, ए इन्हां दी पढ़ाई दे विच समझ नहीं रहे कि बच्चों नूं टाइम चाहिए। लेकिन मेरा एक कहना है तुहानूं सब नूं इत्थे हॉल दे विच काफ़ी यंगर जनरेशन है कि तुहाडे पेरेंट्स नूं तुहाडा कंफर्ट, तुहाडे पेरेंट्स नूं तुहाडे वड्डे रूम्स एसीज़ है नहीं चाहिए, दे नीड योर टाइम। अगर तुसीं उन्हां नूं टाइम नहीं दे सकते, जो असीं दिन ब दिन ओल्ड एज होम्स बनते हुए देख रहे हैं, और तुसीं कभी विजिट करके देखो कि उहदे विच कुछ ऐसे लोग हैं जो हुण सिर्फ मेल है, उन्होंने वाइफ की डेथ हो चुकी है, या कुछ ऐसे ने। एंड आई वॉज शॉक टू रीड कि पंजाब दे विच सब तो ज़्यादा ओल्ड एज होम बन चुके हैं जिन्होंने असी कल्चर का सोरमा मनने। इट वॉज इन अजीत कि जलंधर दे विच रिटायर्ड एक्सीयन, रिटायर्ड स्कूल टीचर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स कल्ले ओल्ड एज होम दे विच पे करके रह रहे हैं। सो वॉट इज़ दिस एजुकेशन? अगर असी इंजीनियर्स हाँ, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हाँ, लॉयर्स हाँ, और साढ़े पेरेंट्स ओल्ड एज होम दे विच रह रहे हैं, दैट मीनस पढ़िया मूर्ख आखिए जित लभ लोभ हंकारा। साड़ी एजुकेशन का कोई फायदा नहीं अगर साड़ी फैमिली दे विच यूनिटी नहीं। असी अपने पेरेंट्स नूं नहीं देख सकते, जिन्ने मर्जी असी लैक्चर सुन के चले जाइए, जिन्ने मर्जी असी गुरुद्वारे दे विच लंगर लगा लीए, लेकिन अगर असी अपने पेरेंट्स नूं, अपने एल्डर्स नूं, अपने रिलेशनस नूं नहीं संभाल सकते, असी गुरु दे नाल या गुरु ग्रंथ साहब दे नाल कदी नहीं जुड़ सकते। असी लोग रोल मॉडल्स बाहर लभने, असी कहने कि अज समाज बच्चा किनू फॉलो करे, कोई रोल मॉडल नहीं है। गिव रोल मॉडल्स टू सोसाइटी, तुसी रोल मॉडल्स दो, प्लीज़ डोंट गिव देम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स। सोसाइटी नू एक अच्छे ह्यूमन बींग्स दो, तुसी उन्हां नू इंसान बना दो, एक काबिल प्रोफैशनल, वो अपने आप बन जाएंगे। गुरु साहब ने मदर की इंपॉर्टेंस दी है कि तन जननी जन जाया, सॉरी मैं बोल चुकिया, तीन तन जने की माओ आए सफल से। गुरु साहब दस रहे ने कि ऐसा इंसान तुसी सोसाइटी नू दो जिन्हों की सोसाइटी फॉलो करे, एक लीडर दो समाज नू जिहड़ा एक रस्ता दिखा सके। और एक बाणी की पंक्ति नहीं है जिन्हों मैं बोल रही हाँ, जननी जने तो भक्तजन, याद आता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। माँ बनना एक गिफ्ट है, हर औरत, एवरी सिंगल वुमन वो अपने आप नू इनकम्पलीट समझती है जब तक वो माँ नहीं बन जाती। माँ बनना एक गिफ्ट है, परमात्मा क्रिएशन कर रहा और तुसी उहदे सहायक हो। सो यू नीड टू थिंक
कि तुसी की उस क्रिएशन नू किस तरह की क्रिएशन नू दुनिया दे विच ला रहे हो। 9 मंथ्स जो मदर सोचती है जदों अपनी वूम दे विच एक बच्चे नू कैरी करती है, जो उहदा सुभाव है बच्चे का सुभाव उस तो डिवेलप होंदा है। तो जिस टाइम तुसी दुनिया च आ गए और जो बच्चे बड़े हो गए, चाहे थोड़ी मदर एजुकेटेड है चाहे अनएजुकेटेड है, चाहे थोड़ी मदर को पैसा है या नहीं, स्टिल पहला अक्षर गुरबाणी का या गुरमुखी का उन्हें ही तुहानू सिखाया, पहला ABC भी उन्हें ही तुहानू सिखाया। और उन्होंने जो तुसी घरों बाहर कढ़दे हो तो प्लीज़ उस वक्त नू याद करो जो वो तुहाडी उंगली पकड़ के तुहानू स्कूल तक लैके जाती सी। एक औरत का रोल है एज अ वाइफ, एक औरत का रोल है एज अ मदर कि वो करैक्ट करे, बहु पर पंच कर पर धन लियावे, सुत दारा प्यान लुटावे, मन मेरे भूले कपट ना कीजे, अंत निबेड़ा तेरा जी पे दीजे। एक औरत की जिम्मेदारी है कि शी मस्ट करेक्ट हर हस्बैंड, शी मस्ट करेक्ट हर फादर, शी मस्ट करेक्ट, चाहे वो गलत तरफ इनकम लैके आ रहा है, चाहे वो गलत डायरैक्शन दे विच जा रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ अगर तुसी देख रहे हो कि किते तुहाडे फैमिली मैंबर्स कॉम्प्रोमाइज़ तुहाडे कंफर्ट्स वास्ते कर रहे हैं, तो तुहाडा बोलना उधर बंद है। एक जनरेशन दूसरी जनरेशन नू प्रॉपर्टी दे रही है, मटीरियल चीज़ां दे रही है, ज्वेलरी दे रही है, विच इज़ गुड, देना चाहिए, लेकिन एक जनरेशन दूसरी जनरेशन नू एक वैल्यू सिस्टम दे के जाए, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन नू स्ट्रॉन्ग कल्चर दे के जाए। अज जो असी अपनी भाषा की गल कर रहे हैं वो टाइम दूर नहीं है कि अज वो यूनिवर्सिटी तो निकल चुका है, साढ़े घरों भी निकल चुका है। स्लोली एंड ग्रैजुअली वो दिन आएगा जो असी अज कहने हैं कि संस्कृत इज़ अ डेड लैंगुएज, एक संस्कृत भाषा सी, देव भाषा सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गल की जाती सी। वो टाइम दूर नहीं होएगा जिस टाइम असी कहांगे कि एक पंजाबी भाषा भी सी। सानू साडी जिम्मेदारी बनती है कि असी लोग सोचिए पंजाबी साड़ी आइडेंटिटी है, पंजाबी साड़ी पहचान है, पंजाबी साड़ा सभ्याचार है। अपनी आइडेंटिटी नू बचाने वास्ते सानू जो करना चाहिए है, गुरु साहब ने कहा सी घर घर मियाँ सबना जियाँ बोली अवर तुम्हारी। लास्ट जो असी वुमन ऑफ सबसटेंस कह रहे हैं या जो असी एम्पावरमेंट और वैल्यूज़ की गल कर रहे हैं, मैं समझ रही हाँ कि एक औरत का क्रिएटिव एस्पैक्ट जो होंदा है, जो दी क्रिएटिविटी है, वो गुरु साहब ने 32 सुलखनी दे विच माता गंगा जी नूं उपदेश दिता सी। 32 सुलखनी सच संतत पूत आज्ञाकारी सुगढ़ स्वरूप, इच्छ पुनि मन कन स्वामी सगल संतोखी देर जिठानी, सब परवारे माहे श्रेष्ठ मत्ती देवे देवर जेठ, तन सो ग्रह जित प्रगटे आए नानक सूखे सूख व्याए। 32 सुलखनी सच संतत पूत, सत या सच उदा बेटा है, और सच जिदी कोख तो जन्म लेगा, सच झूठ की कोख तो जन्म नहीं लै सकता। वो माँ कैसी होएगी, वो क्वालिटीज़ कैसियाँ होणगियां जिदी कोख चो सच जन्म लेगा। मत्ती देवे देवर जेठ, एक जॉइंट फैमिली का कॉन्सैप्ट गुरु साहब ने साढ़े सामने रखा। और गुरु साहब सानू दस हर औरत की ख्वाहिश है, एक हर औरत की डिज़ायर है कि उहदी ओपीनियन मन्नी जाए घर के मैटर्स, उहदे बच्चों के मैटर्स, उन्होंने लाइफ के बारे। मत्ती देवे देवर जेठ, उस लैवल की अंडरस्टैंडिंग और विजडम गुरु साहब उस औरत नूं दे रहे हैं कि उहदी तन सो ग्रह जित प्रगटे आवे, सब परवारे माहे श्रेष्ठ, शी इज़ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, उस तरह की औरत। और 32 क्वालिटीज़ या फैमिनिन वर्च्यूज़ जो गुरु साहब दे रहे हैं, उहदे सच बोलना, स्वच्छता, सुंदरता, सुंदरता नूं गुरु साहब ने नकारिया नहीं है, खाना बनाना, दया और मिठा बोलना, एल्डर्स की रिस्पैक्ट। हुण असीं इत्थे कहांगे कि यह सारा कुछ औरत ही करेगी तो पुरुष को कुछ नहीं सीखना चाहिए, लेकिन कोई भी प्रोफैशन अज प्योरली फीमेल डोमीनेटेड या मेल डोमीनेटेड नहीं रह गया। अगर लड़कियां डिज़ाइनर्स कदी होंदियां सन कपड़ियां दी या इंटीरियर मेल्स हैं, अगर लड़कियां कुकिंग कर रही हैं तो शेफ सारे मेल हैं। तो असी अजय नहीं कह सकते कि दिस इज़ प्योरली है सिर्फ औरतों को सीखने की जरूरत है। सैकेंडली जिस टाइम असी अपनी क्रिएटिविटी को ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਆਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪਲੋਰ ਯੋਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਜਿੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਅ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਮ ਮੇਕਰ ਹੋਣਾ बहुत मुश्किल है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। होम मेकर होना सिंपल नहीं है। असी अपने आप को यह ना सोचिए कि असी सिर्फ होम मेकरस हाँ। एंड डॉक्टर्स भी सानू कह रहे हैं कि इफ़ यू हैव डिप्रैशन, इफ़ यू फील लोनली, तुसी हॉबीज़ जॉइन करो, नवे कोर्सेज जॉइन करो, गार्डनिंग करो। तो गुरु साहब तो सानू वे ऑफ लाइफ ही दे के जा रहे हैं कि यह सारी चीज़ां प्रैक्टिस करो, तो बोर होने का टाइम ही नहीं है। प्रेजेंट
जो साड़ी सिचुएशन है, जो साडा हालात है। मनमुख मैली कामिनी कुलच्छनी कुनार, पिर छोड़िया कर आपना पर पुरखे नाल प्यार, तृष्णा कदे न चुकई जल्दी करे पुकार। जलना कोई फिजिकल जलना नहीं है, ये इंटरनल है। और असी देखिए असी जिन्ने मर्जी जॉब्स विच लग गए हैं, जिन्ने स्टिल वी आर रेस्टलैस। किसी ना किसी चीज़ की कमी, किसी ना किसी चीज़ की खटक साढ़े अंदर साढ़े साइके दे विच हमेशा चलती रहती है। वी आर नॉट एट पीस। तो यह साड़ी प्रेजेंट सिचुएशन है जिहड़ी गुरु साहब नूं दसी है। और अज जदों असी इधरों जाइए एवरी सिंगल इंडिविजुअल असी दो क्वेश्चनस के उत्ते विचार करिए कि क्या फ्रीडम डिसिप्लिन तो बिना पॉसिबल है, क्या राइट्स ड्यूटीज़ तो बिना पॉसिबल हैं। और सैकेंडली असी जिस एज ग्रुप हाँ, रिगार्डलैस ऑफ मेल एंड फीमेल, असी बजुर्ग हाँ, असी यंग हाँ, असी मिडल एजड हाँ, असी अपने गुरु साहब नूं कमिटेड हाँ। वी ऑल से वी आर कमिटेड। तो साड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जो फलसफा गुरु साहब ने साढ़े सामने रखा है वो हले भी दुनिया च नहीं पहुँचा। नहीं तो सानू अपनी आइडेंटिटी दसन वास्ते जाना नहीं पैंदा। नहीं तो अज फिलोसफी MA और फिलोसफी BA ऑनर्स दे विच सिख फलसफा मिसिंग नहीं होंदा। दैट मीनस किते ना किते साढ़े सब की कमी है। तो जदों असी जाइए साड़ा वे ऑफ लाइफ, साड़ा डीलिंग, साड़ा प्रोफैशनल डीलिंग, साड़ी पर्सनल डीलिंग ऐसी होनी चाहिए कि लोग साढ़े तो मोटिवेट होन, सानू खुद आके पुछन, उस फलसफे नूं जानन और अपनी लाइफ दे विच अप्लाई करन जिन्हों गुरु साहब ने कहा सी शब्द गुरु सुरत धुन चेला। थैंक यू। धन्यवाद भावना मलिक जी। नारी चेतना और स्त्रियां दे एम्पावरमेंट और राइट्स ड्यूटीज़ बारे आप जी ने बड़ी खूबसूरती नाल गुरबाणी नूं दे इंस्टेंसिस दे के आप जी ने गल कीती है। गल कर रहे सी कि फ्रीडम बिना डिसिपलिन दे वैसटर्न कंट्रीज़ ने जिन्ने बड़े बड़े फिलोसफर ने उन्होंने फ्रीडम पहले कहा, डिसिपलिन या संस्कार बाद विच कही है। गुरु साहब दा जिहड़ी फिलोसफी है, गुरु नानक की जिहड़ी फिलोसफी है, उन्होंने कहा कि वो आज़ादी जिहदे च डिसिपलिन ही नहीं है वो कोई मायने नहीं रखती। और गुरु नानक साहब ने भारतीय परंपरा के उल्ट इस्त्री ते पुरुष नूं आया आदमी नूं बराबर दसदियां ये कहा कि ये इस्त्री का फर्ज बनता है कि जिम्मेवारी बनती है कि एक चंगे नागरिक पैदा करे जिहड़े एक देश नूं कौम नूं दी उन्नति जिहड़ी है उहदे च सहायक होण। और गुरु नानक साहब ने सिर्फ इस्त्री नूं सत्कार ही नहीं दिता बल्कि इस्त्री नाल हो रही बेइंसाफियां का विरोध भी किया और इस सच तो जानू करवाया कि कोई भी समाज, कोई भी कौम और कोई भी परिवार इस्त्री नूं बंदा सत्कार दिते बिना कामयाब नहीं हो सकता। और थोड़ा जिहा मैं तुहानूं इतिहास बारे दसांगा कि सिख कौम के चरित्र विच और उसके निर्माण दे विच गुरु घर नाल जुड़ियां कुछ बीबियां दे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और गुरु घर दीयां महलां यानी इस्त्रियां ने सिख पंथ की बुनियाद विच चूने गारे का काम किया। तो वो 3-4 करैक्टर 5 करैक्टर मैं जरूर दसना चाहवागा कि पहला सिख होने का मान प्राप्त करने वाली इस्त्री जिहड़ी है बेबे नानकी सी। गुरु अंगद साहब की सपुतनी माता खीवी ये लंगर की संस्था की पहली संचालक सी। जी लंगर की संस्था शुरू हुई और उसकी पहली संचालक इस्त्री बीबी माता खीवी हुई। और गुरु ग्रंथ साहब दे विच किसी करैक्टर का या एक किसी परसनैलिटी का नाम है तो वो अपना नाम जिहड़ा दर्ज गुरु ग्रंथ साहब माता खीवी का है। सिख धर्म की पहली प्रचारक बीबी अमरो हुई। माता गुजरी जिहड़ी पहली औरत शहीद हुई। मदर ऑफ खालसा माता साहिब कौर हुई। माई भागो बड़ा वड्डा एक करैक्टर होया है जिसने एक पहली इस्त्री जरनैल सी जिसने 40 बेदावियां जिन्हों ने बेदावे फाड़ दिते सी उन्होंने 40 मुक्ते बना के सिख इतिहास को कलंकत होने तो बचाया। और पहली पोलीटिकल जिहड़ी वूमेन है सिख इतिहास विच वो माता सुंदरी जिस कंपलैक्स विच असीं बैठे हैं, एक गुरुद्वारा माता सुंदरी है कि गुरु गोबिंद सिंह साहब के ज्योति जोत समान तो बाद 40-42 साल जिहड़ा है गुरुद्वारा है ये उन्होंने एक हवेली सी इत्थे वो रहे ने और पूरी सिख कौम नूं इकल्ली माता सुंदरी ने चलाया। और एक गल साडे इतिहास विच बड़ी घट है और तुहाडे लोकां नूं शायद घट पता होवे कि गुरु तेग बहादुर साहब जदों दरबार साहब गए ने और हरमंदर साहब दर्शन करन जा रहे सी तो उत्थे मीनियां का कब्जा सी, उन्होंने दरवाजे बंद कर दिते। गुरु साहब नूं गुरु तेग बहादुर साहब नूं हरमंदर साहब दे विच नहीं जान दिता। तो कहंदे ने कि इट्टां चूने दे हरमंदर साहब नूं पिट करके गुरु तेग बहादुर साहब अपने दिल विच हरमंदर नूं लैके
शहरों बाहर जान लगे। तो ये इतिहासक सच है कि अमृतसर दियां बीबियां ने, नारियां ने, इस्त्रियां ने गुरु तेग बहादुर साहब नूं वापस मोड़ के लियांदा और अमृतसर शहर दे विच लियांदा। और उस तो बाद दा इतिहास तुहानूं पता है। दो तीन इंस्टेंसिस जिहड़े अज बड़े जरूरी ने सानूं समझने कि वो कहंदे ने कि एक माता और एक पिता और एक बेटी वो मेले विच गईयां ने, तां बाप अलग हो गया, माँ बेटी अलग हो गई ने। तो माँ कहती है देख असी गुम गईयां, तो बेटी कहती है गुमिया तो बापू है, आप तो ठीक आ इकट्ठियां हैगियां। हुण जिहड़ी माँ की सोच है उन्होंने अज असीं त्यागना है और बेटी की सोच नूं अपनाना है। और एक गल मैं दसांगा कि उड़िया दे एक बड़ा वड्डा बड़ा गजब का एक लिटरेचर है, उहदे एक महंती उहदे राइटर ने अमृत धारा नां का एक लिटरेचर है उड़िया दे विच। और उस बड़ी कंध कबीला है, उहदे बारे एक बड़ी वड्डी एक नावल है, एक स्टोरी है। पर मैं तुहानूं दो लाइनां च उहदी गल मैं जरूर दसांगा कि उड़िया दे विच नारी नूं और धरती नूं गर्तमी कहंदे ने। नारी नूं भी गर्तमी कहंदे ने और धरती नूं भी गर्तमी कहंदे ने, और पुरुष नूं दरमू भी कहंदे ने और आकाश भी कहंदे ने। तो उहदे विच इस तरह ही एक दस्सिया कि खाना बदोश जी एक लेडी है और उहदे बच्चा होने वाला है और जंगलों के विच लकड़ियां चुन रही है और उहदी आत्मा बोल रही है कि हमेशा आकाश बोलता है और धरती सुनती है। कि कभी कोई ऐसा समा भी आएगा कि धरती बोले और आकाश सुने। वो अगे फिर इस तरह दसदा है कि किस तरह उसके बच्चा मेल पैदा होंदा है और वो मेल बच्चे नूं अपनी झोली च रखदी है और वो अपने फीड लई रोंदा है। तो उस लेडी नूं एकदम रोशनी एनलाइटमेंट जिसनूं कहंदे ने, वो कहंदी कि अज करामात हो गई, अज कमाल हो गई है कि हुण धरती बोलेगी और आकाश सुनेगा। आकाश जिहड़ा है वो धरती की गोद दे विच है। इस विच वो कहना यह चाह रही है कि जे माँ धरती जिहड़ी माँ का या नारी का प्रतीक है, अगर वो गोद दे विच बच्चे नूं बैठ के वैल्यू सिस्टम दे देवे, मोरैलिटी वाली गल कर देवे, तो कभी भी फिर धरती सुनेगी नहीं, आकाश हमेशा बोलेगा नहीं और धरती नूं सुनना नहीं पेगा। हमेशा धरती बोलेगी, नारी बोलेगी और जिहड़ा इंसान है, जिहड़ा मनुख है, जिहड़ा मेल डोमीनेटेड सोसाइटी है, ये सुनेगी। इस कहानी की ये गल सी। तो जरूरत है अज दी सिख कौम की इस्त्री नूं जागण दी। भावना मलिक ने जे एक गल कही गुरबाणी की, जाग सलोनड़िए, ये 500 साल पहले गुरु नानक साहब ने इस्त्री नूं एक बड़ा वड्डा जागण की गल की सी। ये नींद तो जागण लई नहीं कही सी, ये अपने हक्कां लई जागण की गल सी, अपने फर्जां तो जगाण की गल सी कि गुरु नानक साहब ने 500 साल पहले इस धरती ते औरत नूं और इस्त्री नूं ये चेतना देने की कोशिश की कि तू अपने फर्ज और अपने अधिकार संभाल। अज उस दी गल जिहड़ी है वो जरूरत बड़ी जरूरी है कि उस गल नूं असी अपने समाज विच, अपने परिवारां दे विच अपनाइए। और ये बहुत जरूरी गल है। प्रोफैसर पूरन सिंह ने बड़ियां कमाल दीयां गल्लां लिखियां। वो कहंदा कि जिन्नियां भी उडारियां इंसान ने, मनुख ने इस आकाश ते पाइयां ने, वो सारियां उडारियां दा जिहड़ा जिम्मेवार कोई है तो वो पिछे नारी की चेतना है। वो माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में है। ये मनुख जिहड़ा ये हंकारिया होया है, इस गल नूं मनदा नहीं है। पर यह सच है कि मनुख ने अज तक जिन्नियां भी प्राप्तियां कीतियां ने वो बिना औरत दे, बिना इस्त्री दे जो है वो उसकी इंस्पिरेशन तो बिना नहीं हो सकदियां। तो एक गल अपने जिथे असी अधिकारां की गल कर रहे हैं, उत्थे अपनी इस्त्री या नारी नूं अपने फर्जां के बारे भी सचेत होना चाहिए कि अपने फर्ज की ने। और वो फर्ज जिहड़ी गल भावना मलिक जी ने लगभग 45-50 मिनट दी लैक्चर विच सानूं वार-वार कही है, साडे समाज दे विच, साडी कौम दे विच इस्त्री दा वकार आदमी दी, परिवार दी, कुटुंब दी, समाज दी, कौमां दी इज्जत नाल जुड़िया हुंदा है। और इसलिए नारी चेतना अज दे माहौल की वड्डी जरूरत है। सानू अज इस असपैक्ट बारे बड़ा सोचना चाहिए, खास करके गुरु ग्रंथ साहब नूं मनण वालियां नूं कि गुरु ग्रंथ साहब दे विच जगह जगह दे विच माता दी, इस्त्री दी, पूरा बेटी तो लैके माँ तक दे सफ़र गुरु ग्रंथ साहब दे विच चप्पे चप्पे ते शब्द दे विच सानू समझाया गया। जरूरत है इसनूं पढ़न दी, समझण दी, समझाण दी और अपने परिवारां दे विच और अपने समाज विच, अपनी कौम दे विच एक चंगा माहौल पैदा करन दी। तो ये अज दा ये लैक्चर सी जी। सानू इन्हां गल्लां नूं जरूर समझना चाहिए। मेरी बेनती है कि जिस दिन असी घर दियां मावां अपने बच्चों नूं वैल्यू सिस्टम सिखा देणगियां, वो जमाना पता नहीं कित्थे है। दादियां सानू रात नूं सौण दे टाइम
ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਬਿਨਾਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਕਾਸ਼ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ। ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅੱਜ ਇਤਨੀਆਂ ਹੀ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।